we'll see 10 timeless persuasive copywriting techniques. Number one is given to you as repetition. Repetition is nothing but it is number one technique given to you. You have to repeat your advertisement again and again and again. So let others to think that this product is best. Don't give chance of the mindset of a consumer that he has to think for another product rather than your product. Take example, in the year of 1853 Pepsi Cola came. 1853, फिर 19 आया, 2000 चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है. कोका कोला ऑलमोस्ट सेम ईयर्स में आगे पीछे आए. Still in the present time, if you see, they are continuously doing advertisement on a level, rigorous level, continue. This is called as repetition. Never ever stop your advertisement. Don't let others to think that this particular company or this organization is not advertising. So you have to repeat your thing, repeat your advertisement again and again and again. Of course, with the trendy way, with the latest way and understanding. For example, आप पेप्सी का अगर मैंने नाम लिया तो पेप्सी फोकसेज ओनली फॉर द यंग गन्स. तो उनके जितने भी आप पिछले ब्रांड एम्बेसडर्स देखोगे वो यंग ही बंदा होगा. ओके, अर्लियर टाइम जैसे शाहरुख व्हेन ही वाज फेमस, तो शाहरुख भाई थे, फिर शाहिद was there, Ranbir Kapoor is there. So they select only young celebrity, whoever it is to be. They focuses more and more to the young. And see the beauty in India. At present, maximum people are young. So ultimately, they target maximum people. Okay. So repeat your whatever advertisement concern is there. You just continually focus towards the repetition. Second important technique or the persuasive technique is reason why technique. You give the reason why you have to select this one. Okay. There are many examples. Just now we are like earlier also we have discussed. There's Horlicks, Bonvita, Complan. They give reason. This is good for height. This is good for exam. This is good for your routine work. Okay. There is a medicine for that earlier. Yuvraj Singh was advertising. Then Salman was advertising कि दिन भर आप मेहनत कर रहे हो. ओके, सो आपको एनर्जेटिक रहना है, एनर्जेटिक. सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस वन, रिवाइटल. यू सॉ दैट एडवर्टीजमेंट, रिवाइटल. आपको एनर्जेटिक रहना है, ये रीजन दे रहे हैं उन लोग. आई रिमेम्बर वन एडवर्टीजमेंट, थोड़ा सा पुराना है. हाँ, रिवाइटल एज, करेक्ट करेक्ट. हाँ, रिवाइटल एज, इम्यूनिटी बढ़ाओ, एनर्जेटिक रहो, काम करते रहो. एक पुराना एडवर्टीजमेंट था, दे हैव गिवन रीजन कि पिताजी बोलते हैं आज मैं आऊँगा तो मैं खेलूँगा या वगैरह वगैरह, जो भी बच्चों के साथ. घर पे आते तो थक हार के बैठ जाते. फिर कोई वो क्या ग्लूकोज मिक्स करके एक गिलास दे दे, फिर तो उनकी ताकत माशाअल्लाह. फिर तो सब बच्चों को बुलाओ, सोसाइटी के बच्चों को, आज हम लोग खेलेंगे. ग्लूकोज में इतनी ताकत है, जबरदस्त है. बट दैट इज द रीजन व्हाई एंसेस्टर दे गिव रीजन. ओके, आपके काजोल जी रीजन देती हैं कि आप खाना बिंदास खाओ, हम लोग लाइफ बॉय है, क्या है चांदी है उसमें, हाथ साफ हो जाएगा, हाथ साफ धुल करके खाओ प्रॉपर. हमको नहीं बताएगा क्या घर पे खाना खाने के पहले हाथ साफ कर लो, लेकिन लाइफ बॉय से साफ करो. ये वो ग्रुप ऑफ people like advertiser or copywriter like you people in near future, when you represent such kind of reason कि best way से इसको साफ करो, people feel it. Wow, are you getting? So you have to give reason towards. और best reason भाई कौन भूल जाएगा, वो X डियो, X लगाओ, लोग आपके करीब आ रहे हैं. अगर ऐसा होने लगे तब तो बहुत जबरदस्त है. Are you getting what I mean to everyone? So they give some reason to purchase products and services. Okay, and this is another important technique. Third one is consistent. You have to consistent on the basis of the social trend, consistent on the basis of the your taglines, consistent on the basis of the changes, consistent on the basis of the trend adoption. जो भी latest चल रहा है उसमें consistent होना चाहिए. Your integrity has to be on the basis of the
रैपिड चेंजेस। पेप्सी का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। उसने एक फिक्स स्लोगन पे काम नहीं किया है। कभी दिल मांगे मोर था, फिर चेंज द गेम था, ओके, फिर था ओ यस अभी, ओके, फिर उन्होंने चेंज किया। लाइक दे कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैंपेन, सो दे आर कंसिस्टेंट विद देयर चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्लोगन्स। हाँ स्वैग है या स्वैग है। और उस पर तो पूरा गाना बना दिया सलमान साहब ने। सोलो, सोलो स्वैग क्या गाना है, इफ रिमेम्बर, हर घूंट में स्वैग है। हाँ, और सलमान खान का वो गाना है ना अपना, सोलो स्वैग, स्वैग से करेंगे। नहीं नहीं नहीं, दैट इज अनदर। ये सोलो स्वैग पेप्सी के ऊपर उन्होंने एक अच्छा प्रॉपर गाना बनाया भाई। ये लेक्चर के बाद जरा देखो आप लोग यूट्यूब पे सोलो स्वैग में, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो भी मैं स्वैग में हूँ। भाई हम लोग इंडिया में हैं, हमारा कल्चरल बेस है कि एक एज के बाद शादी करो, फैमिली ये करो, लेकिन हम सोलो स्वैग हैं भाई। पेप्सी बता रहे हैं। और बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर, अगर मैं इसके इसके लिए तो पूछना ही नहीं है। सोलो स्वैग मतलब सलमान से अच्छा इस समय इंडिया में कोई नहीं होगा सोलो स्वैग। राहुल गांधी हो सकते थे अगर एक दो कुछ इलेक्शन अच्छा कर लेते तो, वोट। So consistency it is all about. You remember? हाँ, you remember the time when पप्पू पास हो गया? कंसिस्टेंट, पप्पू पास हो गया। अब बेचारे जितने पेरेंट्स ने पप्पू नाम रखे होंगे, बेचारा वो तो शर्मा के डूब जाए पानी में। पप्पू पास हो गया। So that consistency you have to maintain. If you are going with say humorous way, so humorous new form you have to come up with. Like 5 स्टार का चाहे एक बिलान छोटी कर दो, पिताजी की पतलून, या चॉकलेट खाते हुए बैठ गए, कोई चोरी कर रहा है, उनके लेस बांध दिए, वो गिर रहा है वहां पे। और लेटेस्ट मतलब ह्यूमर को भी एक नया लेवल दे दिया उन्होंने। That shows the consistency. So be consistent on that particular level. Third important persuasive technique. Fourth one is given to you a very obvious thing, of course, social proof. You have to give social proof. See, every human being is what? Every human want to travel from one place to another place. ये nature है हमारा. So you have to give social proof to the people. Like it can be found in the testimonials outside of the world, sometimes referrals, etc. आप वो प्रूफ दो उसको। नंबर वन कल्चरल प्रूफ दो, सेकंड वन आप प्रूफ उसको दो बंदे को कि ये चेंजेस हुए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। फ्यू रेफरेंसेस दो, why we are using different celebrities, why we are using sports stars, because that is a proof. I saw one advertisement कि वो बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मस्त है यार, आप खरीद लो। In one advertisement where Farhan Akhtar was there, and he was like he was eating one biscuit, और वो बोल रहे देखो जनरली आई डोंट यूज सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके, लेकिन ये जो बिस्किट मैंने खाया है इसमें फाइबर है, ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए यूज मत करो, आप खाओ और आप जानो। Are you getting? So being a celebrity, when they are saying this particular products and services is good, इसमें फाइबर है, इसमें कैल्शियम है। हम लोग को बिस्किट लाके हम लोग ने घर पे एक साइंटिफिक एरिया रखा है, पहले बिस्किट उसमें जाता है और वो बिस्किट्स में से क्लियर होके आता है पिक्चर पे, इसमें फाइबर है, इसमें आयरन है, इसमें ये है। ऐसा कुछ है क्या हमारे घर पे? और इज इट पॉसिबल? बट since Farhan Saab is saying or some celebrity is saying or Mr. Kohli is saying कि भाई ये बिस्किट या वेफर सही है, so we believe that can be the social proof when we are the opinion leader is representing in front of us. अभी आज ही सुबह सुबह I was watching on the social media one advertisement was going, सुबह सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग, okay, और ये जब मैं आपको नोट्स भेज रहा था तभी की बात है। I saw ad a guy who dressed up like a god, okay, so वो ट्रैवल करते जा रहा है तो कोई फ्रेंड आया, उससे हाथ उठ मिलाया, फिर उसने देखा मोबाइल पे आया, मम्मी का मैसेज आया है, ओके, भगवान, वो भी इंसान है यार, वो भी भले ड्रेस किया हुआ है भगवान जैसा, शिव जैसा या कृष्ण जैसा कुछ, तो एक भगवान के रूप में। फिर दुकान पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझको कपूर दो, तो वो बंदा है कपूर उठा के देते रहता है, तो दुकानदार इज वो है उसको हटा के और लॉकर से ऑन ओपन करके लॉकर में से एक नया कपूर निकाल के, मंगलम कपूर,
सी क्योंकि भगवान के लिए तो बेस्ट कपूर ही लगना चाहिए। कितने बार हम लोग ने ध्यान दिया कि भगवान के लिए बेस्ट कपूर लगे, बेस्ट अगरबत्ती लगे, बट दैट कैन बी द सोशल प्रूफ कि बेस्ट होना चाहिए व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ द गॉड। ओके, सो सोशल प्रूफ यू हैव टू गिव। समटाइम इट कैन बी एज पर द एरिया ऑल्सो, जो इस पर डिस्कस नहीं किया है, आपको हायर लेवल पे मास्टर्स में आएगा। सोशल प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, लाइक आई विजिटेड जम्मू कश्मीर। ओके, अब वहाँ पे जाके आप रेफ्रिजरेटर आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई, नो नीड टू ऐड ओवर देयर, ऑलरेडी वहाँ पे 8 महीने ठंडे हैं, तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर मत करो। इट इज एज पर द लोकेशन सोशल। दिस इज द फोर्थ persuasion technique in copywriting. Fifth one is comparison. This is the most simple I supposed to be. सबको बच्चे को मालूम होगा what exactly it is mean as comparison as one of the important factor persuasion technique. You just compare your products and services why you are best. Okay, हमने you remember that Colgate and Pepsodent इतना हद हो गई थी कि सामने सामने ही कंपेयर कर दिया था, Tide and Rin। वैसा it is not allowed, unethical, but yes, बात करते करते through advertisement you just without taking name of another person, if you represent your products and services, or you compare your products and services, why your products and services best, people will purchase that one. अभी वो बॉर्नवीटा, आई थिंक बॉर्नवीटा है कि हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स फॉर वुमेन भी आ गया, बराबर है, तापसी पन्नू जी जो कर रहे हैं, हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा फॉर वुमेन, फॉर किड्स, फिर उसमें DHA है जो बच्चों के लिए है, उनके माइंड को फास्ट करेगा, फिर मतलब वो सबके लिए बनाएंगे। बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स फॉर ओल्ड एज पीपल, तुम भी पियो भाई, सब लोग पी रहे हैं तो तुम क्यों नहीं पी रहे हो, बच्चों के लिए, यंग लोगों के लिए, जैसे रिवाइटल एंड ऑल चेंजेस करते जा रहे हैं। लाइक इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन। पहले तो बचपने में सब एक ही फेयर एंड लवली शायद यूज किया होगा मेल लोगों ने, आप लोग भी पूछना, अब वो अलग हो गया है भाई, यू आर अ मेल, योर बॉडी इज रफ, पहले नहीं पता था हम लोग को। सो आपको फेयर एंड हैंडसम होना है, फेयर एंड लवली नहीं होना है। सबसे वो खतरनाक तो एडवर्टीजमेंट वो पहलवान का था कि वो पहलवानी कर रहा है और घर पे जाके लिपस्टिक लगा रहा है। कौन सी दुनिया में है हम लोग? सो कंपैरिजन विथ योर ओन वर्ड्स आल्सो, कंपैरिजन विथ अदर ब्रांड्स आल्सो, ओन प्रोडक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू आर coming up with the different genre, you are concentrating with different people like male, female, transgender, whatever. So future में और भी ऐड आएंगे, अभी हम लोग मेल फीमेल के लिए देख रहे हैं, so be ready for that. और 377 का भी लागू हो रहा है almost. So I'm very practical. See, when we are talking about such things and being as a media person, you have to very much open-minded to talk everything, and they are also our consumers. They are also any particular category. If UGC is granted that one, government is allowed them, तो हमारे लिए तो consumer है बस. Okay. Sixth, so this is comparison is simple technique, persuasion technique. Next one is agitate and solve. Agitation is what? You have to create some situation in front of the consumer that this particular situation can be presented in front of you. This is what the problem to be there. And first you let them to understand what exactly the problem is. And then you solve through your products and services. It is a persuasion technique. वो सेब खाया उसमें ब्लड आया, पता नहीं कितनी बार आया, नहीं आया हमको नहीं ध्यान में, तो आप भाई सेंसोडाइन कर लो। ओके, आपने देखा होगा वो कि कोई बंदा है, वो पुराना एडवर्टीजमेंट है, बस में जा रहा है और ऐसा हाथ पकड़ के खड़ा है, तो उससे बदबू आ रही है बंदे से, तो भाई आप रोल ऑन, उस टाइम पे मुझको याद है, रोल ऑन ऑर्डर को ख़त्म करे, fair deals and all and everything that came into. So you have to agitate and solve. In this particular such type of situations, problem होती है, problems हो जाएंगी. Okay, first you create that situation, you provoke. Agitate can be you provoke those situations. अभी आजकल फैन वगैरह का एग्जांपल लो ना, कितने फैंस आ गए। एक फैन आ गए जो डस्ट को बैठने नहीं देता है। हमारी मम्मियाँ बचपन से फैन को साफ कर करके उसके जो ब्लेड्स होते थे खराब कर दिया, पानी लग लग के। नाउ सी क्या इनोवेशन है यार। आई थिंक वो उषा का फैन है,
कि वो डस्ट कोई नहीं बैठने देगा, पता नहीं वो क्या बना दिया है मैकेनिक्स. दिस इज कॉल्ड एज एजिटेशन इन सॉल्व, that no need to clean the blades of your fan. I saw that advertisement of TV, agitation and solve की बात कर रहा हूँ, एकदम रियल लग रहा है. मतलब सामने बंदा डर रहा है कि शेर अंदर से बाहर आ रहा है. लाइक इतना रियल भी नहीं हुए कि आदमी डर जाए, बच्चे डर जाए उधर. Whatever. So this is called as agitation. You just provoke them and solve with your products and services. Okay. स्मॉल स्मॉल बनाते जाओ, मिलाते जाओ. एजिटेशन, लार्ज बनाओ. Whatever. समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? Seventh important persuasive technique is prognosticate. Prognosticate is nothing but the persuasion technique है. आप find out करो what exactly the idea behind that particular person, the credibility of a different consumers to be there. वो credible किस में हो सकता है, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स है आपके पास, मैंने इसीलिए भेजा पहले से. सो उसके credentials क्या क्या हैं, your company's theme क्या है, current event क्या चल रहे हैं. So you have to find out, prognosticate, find out, research it, what exactly is happening over there in the market. If it is going for कि भाई मेरा भारत महान, भारत माता की जय, ऐसा सिचुएशन चल रहा है, आपको लग रहा है, तो यूटिलाइज सच पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स. आज देखो बाबा रामदेव ने क्या किया, पहले योगा सिखाते सिखाते भारत माता की जय करते हुए धीरे से पतंजलि आ गया, लोगों को पता भी नहीं चला, बाहर की कंपनीज एंड ऑल को 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया. एंड आई सॉ दैट एड, क्या दांत खट्टे करना, तो पतंजलि ने विदेशी कंपनियों के दांत खट्टे कर दिए हैं. प्रोग्नोस्टिकेट इट इज ऑल अबाउट आर कम. हमारे इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, इससे मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है कि हमारा कोई तो इंडियन ऐसे काम कर रहा है, और भी लोगों को आप काम करना चाहिए. तो हमारे इंडिया का पैसा हमारे यहाँ पे ही रहे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी. बट फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट, प्रोग्नोस्टिकेट, यू हैव टू फाइंड आउट दोज थिंग्स, व्हाट कैन बी ओवर देयर, एंड वी कैन रिलेट आवर पीपल on that specific situation. So prognosticate is important. आपको situation, you must be situation learner, you must be time learner. You have to understand कि यार अभी टाइम क्या चल रहा है, वैल्यू क्या है, क्या मार्केट में चलेगा क्या नहीं चलेगा. जब वो जियो जब फ्री में आया तो कोई ऐसा सोचा था हमेशा जिंदगी भर अब जियो फ्री में ही रहेगा? सबको पता था इसके आगे चल के चार्जेस लगेंगे. मुकेश भाई को क्या ऐसे ही है कि भाई बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं समाज सेवा करूंगा. फिर उन्होंने लाया ना अपने प्लान्स जियो के थ्रू, फिर उनके खुद के फोन्स आए, फिर उसमें वही जियो ही कार्ड चलेंगे वगैरह वगैरह, और जो भी प्लान्स लेके आए. सो लेट पीपल टू गेट हैबिट और हैबिचुअल फॉर एनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देन यू कैन इंक्रीज द रेट एंड अदर थिंग्स. गो ट्रायल, अनदर इम्पोर्टेंट पर्सुएशन टेक्निक, ट्रायल बेसिस. आपने सुना है ड्राइविंग वगैरह के लिए, कार वगैरह के लिए गए तो एक ट्रायल बोलते हैं, भाई ट्राई कर लो. मॉल्स इतने बड़े बड़े ओपन किए हुए हैं, उसमें एंट्री करते वक्त पहले पूछ लेते हैं, हेलो गो ट्रायल 8 ट्राइबल सॉरी मैं ट्रायल एग्जांपल दे रहा था, ट्राइबल 8 ट्रायल का एग्जांपल दे रहा था मैं, ड्राइवर. गुड वन. ट्राइबल इज बेसिकली, मैं बताता हूँ उसको, पहले ट्रायल का समझो कि ट्रायल इज व्हाट बेसिकली, जैसे मॉल्स खुले हैं बड़े बड़े, वहाँ पे एंट्री करते वक्त ऐसा नहीं पूछते हैं कि भाई आप परचेस करोगे तो ही अंदर जाओ, और ट्रायल को उन्होंने फ्री करके रखा हुआ है. नाउ ट्राइबल इज व्हाट व्हेन यू आर विजिटिंग, एंड दुनिया में किसी को भी पूछो वेयर यू वांट टू लिव, सो एवरीबडी वांट टू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे ओपननेस हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे cleanliness हो, kind of something. Openness is important. I think few months before when I was talking with one of the doctor, he said see human being या human life बनी ऐसी है कि आप खुले में रहना पसंद करते हैं. ट्राइबल का मतलब ये है कि you create situation और advertisement और theme in such a way where we can link ourselves with the tribal nature kind of, or old systems kind of.
टेक एग्जांपल, फेयर एंड लवली का एक आया था एडवर्टीजमेंट, फेयर एंड लवली आयुर्वेदा, कभी सुना है आपने? फेयर एंड लवली आयुर्वेदा, जो जड़ी बूटियां वेद पुराण में थी, पुराना पुराना था, उसका एक पार्ट आया था, जो पुराने हमारे कल्चर में था, वो सब चीजों को हम लेके आ रहे हैं इस जड़ी बूटी. सो यू just drive them towards the old patronage, old systems, old cultures, relate those things at the present, आपका काम हो जाएगा. मैंने डव का एक एग्जांपल देखा था जिसमें एक दादी है, और अभी लेटेस्ट भी ये आ रहा है, ऐड आ रहा है. डव में एक दादी है, होती है, और उन्होंने उन्होंने वो हेयर ऑयल मसाज करते हुए पिक्चर, अच्छा है उसका, प्रिंट ऐड था. तो वो जो दादी या नानी जो नर्चरिंग करती थी, वो अब नर्चरिंग नहीं हो रही है. तो डव केम अप विद द ऑयल जो स्टिकी नहीं है काइंड ऑफ. और अभी पूछा जा रहा है ऐड में कि आपके हेयर फॉल कब कम होते थे, तो जब नानी दादी वो अच्छे से मसाज करती थी विद ऑयल तो नहीं होता था. ये पुरानी चीज़ों को व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग, तो ट्राइबल इज ऑल अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीनरी, माउंटेन्स, नेचर, old customs, old values in a new form when we are representing, that is called as go tribal. This is very simple unique technique, especially for India तो बहुत ही चलता है. पतंजलि भाई ने तो वही किया है ना, सब पुराने टेक्निक्स. ग्रीनरी में जाके वहाँ पे आप रहो कुछ दिन, उनका बाकायदा उसके कोर्सेज हैं, 1 महीने 2 महीने के कोर्सेज हैं, आप वहाँ पे जाके रह सकते हो. उनके वो सारे मसाज जो भी है, मसाज सेंटर्स एंड ऑल स्टफ, वो सब है, यूटिलाइज करो. गो ट्राइबल आज यही है, हो गया है. I don't know how many people you have known this one, but ISKCON, they have opened different villages, Vrindavan type of village and all. Okay? Free नहीं है, you have to visit over there, you have to pay, then of course you will, nominal rates भी हैं. Like पालघर में एक है उनका village, पता है, किसी ने सुना है ISKCON का? गोवर्धन, गो समथिंग, सब गो से नाम है उस विलेज का, not Govardhan, something मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है. So my friends used to go over there regularly, and it is very peaceful, na. So in your advertisement, when you are representing the relaxation to your consumers on the basis of such kind of things, they will feel it better. So go tribal. Attach your product with the old customs, values, things. People will like it. Address objection. Objection is what, that few people, they don't like particular position, they don't like particular products or services. So objections you have to represent. So it is, yeah, like they have given, someone is left thinking, yeah, but well, you have lost that, this is that is for you, आप एक बार read कर लेना उसके लिए. So objection, where the argument against you should be fairly obvious, and if you think there are no reasonable objection to your position, you are in form of shock if your comments enable. So address objection, that somebody, like हम directly product को like करते नहीं हैं. Okay, कोई भी product, it is a human nature, any products or service that people represent in front of us, हम डायरेक्टली लाइक नहीं करेंगे. फ्यू थिंग, और ह्यूमन का नेचर है भाई, हर एक आदमी के अंदर वो कुछ ना कुछ खोट निकाल ही लेते हैं. सो ऑब्जेक्शन को भी ताकत बनाओ. Few people, if they object that and they say this particular product is not good, so you come up with some new creative concept, so people like those things. ये हुआ था हमारे निर्मा के साथ. Nirma thought during the time of 1980s they are the best seller to be there in the market. Okay, and they were not knowing that Ariel and Surf Excel was doing very good thing, continuously advertisement and all. They captured the market और निर्मा का नामो निशान खत्म किया. नाउ निर्मा केम अप विद द न्यू वे. कौन सा वो, हेमा, लता और जया, सुषमा, जया. So they it is now compulsory for them that they have to come up with a new way. So whatever things that was not captured by the people, now they can come up with the new thing and understand that this product is still doing well. तो अभी तो मैं देख रहा हूँ अच्छे उसके एडवर्टीजमेंट चल रहे, थोड़ा सा अपलाइन पे आया है. सो नाउ निर्मा, टाइड, सर्फ एक्शन, इन सब में अच्छा फाइट चल रहा है, रीन एंड ऑल.
Last one is storytelling. This is very simple to understand. You just represent story, like the in your advertisement, you just present and put forward the pictures or the glimpses, you can say. So story has to be there, so that people can relate themselves with products and services. बहुत ही सिंपल सा एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको प्रोडक्ट का नाम ध्यान में आ जाए तो बता देना। बहुत गर्मी है और मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे ये बहुत पसीना हो गया है। सो मैं एक दुकान पे जाता हूँ और मैंने देखा एक नया प्रोडक्ट है, मैंने उनसे मांगा, वो लेमन वाला प्रोडक्ट है। ओके, एक बॉटल है, ओपन किया और पिया तो मुझको मेरी माँ याद आ गई कि जब मैं गांव में था और जब ऐसे ही पसीना वगैरह या गर्मी होती थी तो मेरी माँ नींबू पानी बना के देते थे। कौन सा प्रोडक्ट है वो? नींबूस। नींबूस, रिमेम्बर दैट? नींबूस का एक है ना प्रोडक्ट। मतलब ये स्टोरी टेलिंग है। दैट वाज हैपेंड व्हेन यू वर देयर इन द विलेज, द सेम टेस्ट। मैं गारंटी करता हूँ, आप घर पे नींबू पानी बना लो और नींबू पी लो साथ में, और बच्चा भी नहीं पिएगा वो नींबू। मतलब कंपैरिजन थोड़ा अलग है, एडवर्टीजमेंट इज डिफरेंट। So advertisement में you just relate those stories in such a way that give beautification of your products and services, and we can relate ourselves. बहुत सारे ऐसे products हैं जहाँ पे story बताई जाती है and we feel it कि हाँ ये ऐसा सही होगा अगर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, there is something, some chemical is there। जैसे हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। मैं वही एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, डॉक्टर्स बोल रहे थे इन अ सिगरेट देयर आर 40,000 1000 केमिकल्स आते हैं, 1000। सो इन अ पैकेज ड्रिंक पता नहीं कितने केमिकल्स होंगे और कितने दिनों तक होगा, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट बदलते जाएगा भाई। बट आई डोंट फील सो कि जैसा होम में जो मम्मी बना रही है या हम बना ले अपने हाथ से, वो उसको कंपेयर कर सकेगा। डेफिनेटली नहीं वैसा होगा। बट यहाँ पे वो जरूरी नहीं कि मैं क्या बता रहा हूँ टेस्ट अच्छा है कि नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, यू शुड नो द स्टोरी टेलिंग। आप स्टोरी टेलिंग करके बता सकते हो। टेक एग्जाम्पल ऑफ एवरीबडी, यू आर अ ग्रोन अप स्टूडेंट। वो एग्जाम्पल देखा था, टच द पिकल, टच द पिकल। वो ड्यूरिंग द menstruation हमको पिकल वगैरह टच नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, ये नहीं करना है। So women empowerment and other stuff related with that whisper or the stay free that they came up with the campaign touch the pickle। बहुत कैंपेन अच्छा किया था, I like that particular thing। इनफैक्ट मैंने उसके लिए 2-3 जगह पे विजिट भी कराया था, गर्ल्स एंड बॉयज़ का। फ्यूचर में हमारा प्रैक्टिकल होगा तो आपके विजिट रखूंगा मैं कुछ कुछ जगह पे, ओके, जब सामने सामने मिलेंगे। तो दैट वाज नाइस कैंपेन, स्टोरी टेलिंग इट वाज। हमारे कितने सालों से धारणा थी, मैंने तो पेपर भी प्रेजेंट किया है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा पेपर, नेशनल लेवल का पेपर था। 7 साल की नहीं, 7 नहीं, 9 साल की लड़की से लेके 67 ईयर्स के औरतों तक का मैंने इंटरव्यू लिया था। मतलब इंटरव्यू बेस्ड पेपर था, फैबुलस। आपने सबरीमाला का केस तो सुना ही होगा। तो टच द पिकल वाज अ वेरी नाइस कैंपेन, स्टोरी टेलिंग था कि पुरानी जो धारणाएं हैं एंड द स्टीरियोटाइपिंग टुवर्ड्स द फीमेल्स और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड टाइम। सो आप उसको दिमाग से निकालो भाई, कौन से जमाने में रह रहे हैं आप लोग। सो दैट इज व्हाट द स्टोरी टेलिंग ऑल टुगेदर। समझ में आ रहा है एवरीवन? हेलो, देयर आर मेनी एग्जांपल्स स्टोरी टेलिंग। So these are the 10 important persuasion techniques. I feel you can understand this one. And this is important question, of course. Take Kalena, it is an important question for you. Uh, Hopefully you are able to understand.